Hello students, welcome to online classes of Mavin International School Kishangarh Renwal. Myself Rajesh, your maths teacher. So from today onwards we are going to record your maths lectures and our very first chapter is knowing our numbers. So before starting this chapter, I want to tell you that you will make a separate notebook of maths and you will do your practice work in rough notebook, or you will do questions separately in maths notebook on the basis of daily routine. So our very first chapter is knowing our number. But as you all know, numbers play very important role in our daily life. In maths, in every subject we deal with the numbers, and you already know about the numbers. In universe there are infinite numbers or many types of number. Mainly number are of two types: real number and imaginary number. You will get to know in senior classes like 11th class about the imaginary number, but from these classes you will get to know about the real numbers. There are many types of real number: rational and irrational. Again, rational number having some types like natural number, whole number, integers, terminating, non-terminating, repeating decimal. So today I am giving you some brief about the natural number, whole number, integers. Then after we will move to our chapters knowing our number. So बच्चों, what is natural number? All the counting number are known as natural number, like 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to infinite. And what is whole number? When you include 0 in natural number, it is known as whole number, like 0 and natural number 0, 1, 2, 3, 4. What is integers? But in some books you will see the definition or by some teachers that all the negatives and all the positives including 0, but this is a wrong definition. What you will say, all the natural number with their negatives including 0. बच्चों, जो हमारे नेचुरल नंबर है वो लेने हैं और उनके नेगेटिव्स लेने हैं और हमें 0 भी लेना है, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे? इंटीजर्स हो जाएंगे. So first I am going to write the definition of these three numbers. You will pause the video and note it down the definitions. So very first is natural number. बच्चों, natural numbers is denoted by capital N. All the counting number known as natural numbers. ठीक है बच्चों, natural number is denoted by capital N and set of natural number is 1, 2, 3, 4. बच्चों, नेचुरल नंबर हमारे क्या होंगे? 1, 2, 3, 4 एंड डैश डैश का मतलब क्या है बच्चों? अप टू इनफाइनाइट. ये नंबर चलते जाएंगे जहाँ तक नंबर एंड होते ही नहीं है, आपको पता है. पर सबसे लास्ट वैल्यू को हम क्या मानते हैं? इनफाइनाइट. और इनफाइनाइट इज डिनोटेड बाय लाइक दिस. यू कैन से इनफाइनाइट और infinity, right? Infinite or infinity. There is no value of infinite, or infinite is नॉट डिफाइंड. ठीक है बच्चों. यहाँ नो वैल्यू का मतलब ये नहीं कि ये बिल्कुल ही वैल्यू नहीं है. हमारे पास नॉन वैल्यू नहीं है इसकी कि इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगी हमें ये नहीं पता. ठीक है ना. इनफाइनाइट नॉट डिफाइन होता है.
तो बच्चों अब नेक्स्ट नंबर है हमारा होल नंबर। ठीक है बच्चों, होल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल W। नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो। बच्चों नेचुरल नंबर में हम क्या ऐड कर देंगे, हम जीरो को भी इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है बच्चों, डैश 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 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीजर के बारे में। कौन से नंबर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं? इंटीजर के बारे में। आप वीडियो को पॉज करके राइट इट डाउन द डेफिनेशंस ऑफ नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंटीजर्स। इंटीजर इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z। बच्चों इंटीजर की डेफिनेशन अभी जस्ट मैंने आपको बताई थी। ऑल द नेचुरल नंबर्स with their negatives इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है बच्चों, हमें सारे नेचुरल नंबर लेने हैं और उनके नेगेटिव्स भी लेने हैं। जैसे नेचुरल नंबर हमारे क्या है 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। अब उनके नेगेटिव लेने हैं हमें -1 -2 -3 -4 अप टू इनफाइनाइट। पॉजिटिव में इनफाइनाइट की तरफ और नेगेटिव में भी इनफाइनाइट की तरफ इंक्लूडिंग ज़ीरो। इट मीन्स अगर मैं लिखना चाहूँ इंटीजर का सेट, नेचुरल नंबर के नेगेटिव्स जीरो और नेचुरल नंबर के नंबर 1 2 3 4 डैश डैश अप टू इनफाइनाइट -1 -2 -3 डैश डैश डैश। ठीक है बच्चों, देखो ये रहे आपके नेचुरल नंबर, ये रहे इनके नेगेटिव्स और ये रहा आपका ज़ीरो। ठीक है बच्चों, अब ये जो आपके नंबर है जीरो के राइट साइड में, वो सारे के सारे नंबर आपके क्या हैं? पॉजिटिव इंटीजर है। और इधर वाले नंबर क्या है? नेगेटिव इंटीजर। और जीरो क्या है बच्चों? नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो आप स्टार बना के पता होना चाहिए, ज़ीरो इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, जीरो ना ही हमारा नेगेटिव होता ना ही हमारा पॉजिटिव होता। बहुत सारे बच्चों को ये बात पता नहीं होती है, बार बार बताने के बाद भी बच्चे भूल जाते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ज़ीरो ना ही नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव। ज़ीरो इज़ नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं पॉजिटिव इंटीजर की। किसकी बात करते हैं बच्चों? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स डिनोटेड बाय Z+। जो हमारे पॉजिटिव नंबर हैं वो हमारे कौन से हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4। अगर आप देखेंगे व्हाट इज़ द सिमिलरिटी बिटवीन पॉजिटिव इंटीजर एंड नेचुरल नंबर। बच्चों ध्यान दो, हमारे जो पॉजिटिव इंटीजर है वही तो नेचुरल नंबर होते हैं। तो आप स्टार बना के लिख सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर एंड नेचुरल नंबर्स बोथ आर सेम। ठीक है बच्चों, आपके नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। अब देखो बच्चों, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेगेटिव इंटीजर्स।
विच इज़ डिनोटेड बाई z माइनस, बच्चों इसमें नेगेटिव इंटीजर लेंगे, -3, -2, -1, डैश -1, -2, -3, डैश डैश अप टू इनफाइनाइट। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है। पॉजिटिव इंटीजर में हम ये वैल्यू लेंगे, नेगेटिव में हम ये वैल्यू लेंगे, डैश डैश मीन्स अप टू इनफाइनाइट। और बच्चों जो जीरो है आपका क्या है, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो ना हमारा नेगेटिव होगा ना ही हमारा पॉजिटिव होगा। बच्चों नंबर्स के बारे में बहुत डिटेल से आप सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें आप 7th में एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, कुछ इन 8th क्लास, सम इन 9th, सम इन 10th, बट आपका बेसिक यहीं से स्टार्ट हो रहा है। आपको नंबर्स के बारे में हर चीज़ पता होनी चाहिए। और मैथ्स के अंदर स्टेप बाय स्टेप बेस बिल्ड होता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने कुछ पढ़ा कल भूल गए। मैथ्स में हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं वहाँ डाउट सेक्शन में, बट आपको हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए स्टेप बाय स्टेप। और मैक्सिमम आपको मैथ्स में चीज़ें प्रैक्टिस करनी होती है, डेफिनेशन को अच्छे से लर्न करना होता है। ठीक है बच्चों, आगे बहुत सारे नंबर है, रेशनल, इरेशनल, बट वो आप अलग क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये बेसिक कुछ डेफिनेशंस मैंने आपको बता दी है। इसके बाद हम हमारे चैप्टर से भी रिलेटेड, अब देखो बुक में गिवन है कि नोइंग और नंबर, तो हम वही चीज़ें देखेंगे क्योंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट है। बट नोइंग और नंबर में भी इनफाइनाइट चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं, बट जो जो हमारे सिलेबस में गिवन हम वही पढ़ने वाले हैं। जैसे बच्चों आपको बोला जाए स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। बच्चों क्या होता है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर? 10। बच्चों यही होता है हमारा फर्स्ट 2 डिजिट नंबर, क्योंकि 1 to 9 क्या होता है बच्चों, 0 से लेके या 1 to 9 हमारे सारे नंबर क्या होते हैं, सिंगल डिजिट वाले होते हैं। बट सबसे पहला डबल डिजिट नंबर आता है हमारे पॉजिटिव साइड में 10, जो कि हमारा क्या है स्मॉलेस्ट नंबर है। अगर इसी के साथ देखो आप लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, बच्चों लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 99। अगर आप देखो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा? 99, क्योंकि 99 के नेक्स्ट जो नंबर होगा वो हमारा 100 होगा, और 100 इज ए 3 डिजिट नंबर। जैसे आपको बोला जाए इफ़ अगर आप 99 में +1 बच्चों करते हैं तो इट विल बिकम 100, एंड 100 क्या हो गया आपका 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है बच्चों, अब जैसे आपको एक नंबर दिया गया 999, यह आपका क्या है बताओ? 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर और इंटीजर। ठीक है, तो आप इट मीन्स अगर कोई भी डिजिट है, अगर 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है, अगर आप उसमें 1 ऐड कर देते हैं तो वो 4 डिजिट का क्या बन जाएगा बच्चों? अगर आप 1 ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है आपका वो 1000, विच बिकम 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? मीन्स अगर आप किसी भी 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लेंगे, उसमें 1 ऐड करेंगे तो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल छोटी छोटी बेसिक बातें हैं बच्चों। अब इसके बाद में मैं आपको जैसे कोई नंबर लूँगा, वो नंबर 3 डिजिट हो सकता है, 5 डिजिट हो सकता है, 7 डिजिट हो सकता है, 8 डिजिट हो सकता है। हम उनके बारे में वी विल डिस्कस अबाउट द प्लेस वैल्यू ऑफ दीज नंबर, देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूमरेशन, मीन्स वी विल डिस्कस द इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम और इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम की। जैसे कोई नंबर गिवन है तो उसको हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे। जैसे आपके पास एक नंबर गिवन होता है, नंबर गिवन है फॉर एग्जाम्पल 3257। अब आपको पता है इस नंबर को हम कैसे लिखेंगे? 3257, राइट। जैसे एक नंबर ले लिया 321, तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ये हमारा इंडियन सिस्टम है, और जो इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम होगा वो कुछ डिफरेंट होगा। उसके बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एक बार मैं वीडियो पॉज करके लेट में चेक सी द क्वालिटी ऑफ वीडियो। नाउ बच्चों वी विल डिस्कस अबाउट द प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है,
सपोज करो बच्चों मैंने एक नंबर ले लिया जो आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, अभी मैं इसका न्यूमरेशन नहीं बता रहा हूँ, आप एक बार देखिए इस नंबर को। 3 डिजिट, 5 डिजिट, 7 डिजिट और 8 डिजिट। ठीक है बच्चों, ये हमारा कितना डिजिट नंबर है? 8 डिजिट नंबर है, विच इज़ ए लार्ज नंबर। अब ध्यान दो बच्चों, अगर इसका प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है हमें, तो उसके लिए हमें देखो वंस वैल्यू देखनी है, थाउजेंड्स वैल्यू देखनी है, लाख वैल्यू देखनी है और करोड़ वैल्यू देखनी है। कैसे बच्चों? ये है हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। क्या है ये हमारा? इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है बच्चों, देखो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन आपको ऑलरेडी पता है, जैसे मैंने जस्ट अभी बताया, जैसे एक नंबर है 42,572। इसको कैसे लिखेंगे हम इंडियन न्यूमरेशन में? 42,572। और बच्चों ध्यान दो, जो हमारा इंडियन सिस्टम है उसके अंदर जब हम कोमा लगाते हैं तो राइट साइड से सबसे पहले 3 डिजिट के बाद में कोमा लगेगा, फिर उसके बाद में 2 डिजिट में, फिर 2 डिजिट में, वो इसी सीक्वेंस में चलता जाएगा। जैसे एक नंबर लिखा हमने 42,574 मान लो, ये 72 है। अब हमें 3 डिजिट के बाद राइट साइड से 1 2 3 के बाद कोमा लगाएंगे, उसके बाद 2, अब तो डिजिट ही खत्म हो गए। जैसे मैंने मान लो नया नंबर लेता हूँ 1 2 3 7 8 5 2, ये कोई भी एक नंबर है बच्चों, नंबर है 12 लाख 37,852। तो हमें कोमा जो पुट करना है, ठीक है, जो पीरियड पुट करना है वो हमें कहाँ पुट करना है? 3 डिजिट के बाद में, फिर 2 डिजिट। अब 2 डिजिट के बाद में पुट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि नंबर हमारा ख़त्म हो गया। जैसे मान लो एक नंबर है 734252743227। ठीक है, अब यहाँ पे कोमा पुट होगा 3 डिजिट बाद में, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर तो डिजिट है ही नहीं 2 के बाद में। समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ पे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन देख रहे हैं, उसके बाद में देखेंगे हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। और जो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है बच्चों, उसमें कोमा लगाने का मेथड मैंने आपको बता दिया है। राइट से हम पहले 3 डिजिट के बाद में कोमा पुट करेंगे, फिर 2, फिर 2। ठीक है, इजिट क्लियर है? उसके बाद में मैंने बना रखा प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, इंडियन न्यूमरेशन के लिए क्या बना रखा है बच्चों? प्लेस वैल्यू चार्ट। सब कुछ आपको अच्छे से बुक में भी एक्सप्लेन्ड है, बट आपको बोर्ड पे अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, बहुत ही ईजी चीज़ें हैं। तो देखो बच्चों, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का प्लेस चार्ट है। मैंने एक एग्जांपल लिया आपके सामने, एक नंबर गिवन है 3 2 5 2 7 और 8। ये नंबर क्या कह रहा है? 6 करोड़ है इसमें, 34 लाख है इसमें, 87,000 है, 525। इसको इंडियन में कैसे लिखेंगे? 6 करोड़ 6 करोड़ 6 करोड़ 6 करोड़ 34 लाख, इट्स नॉट 1000 उसके बाद में है। 34 लाख 87,000 525। ठीक है बच्चों, इसको क्या लिखेंगे हम? 6 करोड़ 34 लाख 87,525। अब बच्चों ये हमने कैसे लिखा, उसके लिए मैंने आपको बना रखा है प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है बच्चों, बच्चों ध्यान दो, जो हमारा वंस प्लेस होता है इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में, वंस प्लेस में 3 डिजिट होती है। ठीक है, जो वंस प्लेस है हमारा, जो हमारा वंस पीरियड है, इन वंस पीरियड
अब ध्यान देना, ये इंडियन सिस्टम की बात कर रहे हैं। इन वंस पीरियड देर इज 3 प्लेस वैल्यूज, देर इज 3 प्लेस वैल्यूज। मतलब बच्चों जो हमारा वंस पीरियड होगा, वंस ये वाला, इसमें कितनी प्लेस वैल्यूज होगी? 3। कौन सी वाली? ये वंस है, ये टेंस है, ये हंड्रेड्स है। मतलब वंस प्लेस राइट साइड से सबसे पहले कौन सा नंबर आ रहा है? 5, वो हमने पुट कर दिया। फिर इसके जस्ट आगे वाला 10th डिजिट पे कौन सा नंबर है? 2, वो हमने पुट कर दिया। थर्ड 100 डिजिट पे कौन सा नंबर आ रहा है? 5, वो हमने पुट कर दिया। ठीक है बच्चों, उसके बाद ध्यान दो 1000 डिजिट में कितनी प्लेस वैल्यू होगी? 2। तो ये आगे आप लिखेंगे 1000 इन 1000 period there is 2 place values। बच्चों 1000 वाले में 2 प्लेस वैल्यू होगी। देखो ये रहा, ये 1000 है आपका 7, ये 10,000 आ गया आपका, तो ये 8 है। फिर उसके बाद सिमिलरली बच्चों लेक में भी 2 होगी, लेक और 10 लेक। ठीक है बच्चों, तो लेक का ये रहा 4 और ये 10 लेक का हो गया 3। उसके बाद में करोड़ का आ जाएगा ये 6, क्योंकि करोड़ अगर एक डिजिट और होता, सपोज करो आगे एक डिजिट और होता तो हम यहाँ करोड़ लिखते, उसके बाद में क्या लिखते हैं बच्चों? 10 करोड़। अगर यहाँ पे जैसे सपोज करो 1 आता तो 10 TC लिखते हैं, हम यहाँ पे 1 आ जाता, बट अभी हमारे यहाँ पे डिजिट है ही नहीं। तो वंस पीरियड में 3 प्लेस वैल्यू होगी, वंस, टेंस, 100। और 1000 वाले पीरियड में 2 प्लेस वैल्यू होगी, 1000 और 10,000। सिमिलरली लेक में 2, करोड़ में 2। ठीक है बच्चों, तो ये आपको प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना आना चाहिए और आपको उसका इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जैसे मैं एक नया नंबर ले लेता हूँ, जैसे अगर आपको बोला जाए, जैसे आपके पास एक नंबर है, आपको एक नंबर दिया मैंने, जैसे 54,487। ठीक है बच्चों, अब ये इंडियन सिस्टम है तो हम 3 डिजिट छोड़ के कोमा लगाएंगे, फिर 2 डिजिट छोड़ के, फिर उसके बाद तो डिजिट ही नहीं है। अगर मुझे इसका प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना होगा तो बच्चों ध्यान दो, वंस प्लेस पे कौन कौन आता है? 100, वंस, टेंस, 100। ठीक है, फिर उसके बाद में 1000 प्लेस पे कौन आता है? 1000 वाले में थाउजेंड्स का जो पीरियड है उसमें कौन कौन आता है? 1000 आता है और 10,000 आता है, TTH। तो देखो वंस प्लेस पे कौन है? 7, 10th प्लेस पे कौन है? 8, 100 प्लेस पे कौन है? 4, 1000 प्लेस पे कौन है? 4 और 10,000 प्लेस पे कौन है? 5। तो ये बच्चों हमारा क्या हो गया? प्लेस वैल्यू चार्ट हो गया किसका? ये जो एक नंबर गिवन था उसका। इज इट क्लियर बच्चों? अगर मैं दूसरा नंबर लेना चाहूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करना ही मैथ्स को सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है। फॉर एग्जाम्पल अगेन मैं एक नंबर ले लेता हूँ, जैसे मान के चलो इससे थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ, जैसे मैंने नंबर ले लिया 52,57,642। अब बच्चों कोमा लगाएंगे हम 1, ठीक है, 3 डिजिट के बाद में राइट से फिर 2 फिर 2। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर यहाँ पे 1 डिजिट ही होता तो हम इतना ही लिख देते, बट यहाँ पे 2 डिजिट ले लिया, जैसे मैंने कौन सी 52 था। अगर आगे में और डिजिट लेता तो यहाँ पे कोमा लग जाता, बट यहाँ पे डिजिट है ही नहीं। अब ये ध्यान दो, पहले तो इसमें कितनी है डिजिट? 3 तो वंस वाले पीरियड में है, 2000 वाले पीरियड में है और 2 लेक वाले पीरियड में। इसका मतलब ये 10 लेक हो गया ना बच्चों। देखो वंस पीरियड को खा जाओ, अब आ जाओ 1000 वाले पे, तो ये 1000 है, ये 10,000 है, तो 57,000 हो गया। फिर ये लेक वाला पीरियड है 10 लेक वाला, तो ये 2 लेक, अगर ये 5 नहीं होता तो 2 लेक 57,642 होता, बट यहाँ पे 5 भी है, तो ये हो जाएगा बच्चों। हम कैसे लिखेंगे इसको? 52 लेक 57,642। प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे बच्चों, तो देखो वंस प्लेस पे कौन है? 2, 10th प्लेस पे कौन है? 4, 100 प्लेस पे कौन है? 6,
1000 प्लेस पे कौन है 7, 10,000 प्लेस पे कौन है 5, लेक वाले प्लेस पे कौन है 2, 10 लेक वाले प्लेस पे कौन है 5। तो ये आपका प्लेस वैल्यू चार्ट हो गया। बच्चों इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन में जो वंस वाला पीरियड होता है उसमें 3 प्लेस वैल्यू होती है, फिर उसके बाद में जो 1000 वाला पीरियड होता है उसके अंदर 2 प्लेस वैल्यू होती है, लेक वाले में भी 2, करोड़ वाले में भी 2। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब इसके ऊपर बेस्ड एग्जांपल्स बुक में गिवन है और आपके एक्सरसाइज में गिवन है। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, उनका प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है, इन इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन इन फर्स्ट और वंस पीरियड देर आर 3 प्लेस वैल्यूज, वंस, टेंस, 100। इन 1000 पीरियड देर इज 2 प्लेस वैल्यू, 1000 और 10,000। इन लेक 10 लेक, इन करोड़ 10 करोड़। इज इट क्लियर बच्चों? इन नेक्स्ट क्लास we will discuss about the international system of numeration. So I request you to solve the questions related to Indian system of numeration. Thank you. Have a nice day.